Hello friends, this is Saurabh Dwivedi. I welcome you to my YouTube channel Adbhut Learning. Please like, share and subscribe my channel. Friends, today we are going to discuss a very important thing, that is public administration. The public administration is a unique subject which not only asks in IAS exams but at the same time PCS or state level exams. Friends, today we are going to discuss the public administration in our video lectures. This is my first video. I'm making it for the public administration. It will help not only to the IAS aspirants, at the same time the state PCS exam aspirants. You know very well that public administration is a subject that is not only covers your optionals but at the same time it covers your paper 2. आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में है, जो कि आपके सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है. एट द सेम टाइम ये आईएएस और पीसीएस के दोनों एग्ज़ाम में आती हैं. दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी यूनिक इन द टर्म्स ऑफ दैट इट इज़ रिलेटेड विद द डे टू डे लाइफ. You see various government agencies near about you, various organizations, institutions nearby you, the legislatures, you observe the executives, officials, at the same time you observe the judicial systems. So this subject is a very dynamic one. When I say dynamic one, means it is not a static part like other subjects are there. Means something has happened and we are studying all those things. But in public administration, the things are different. It is even this subject is evolutionary phase. So various parts of the public administration is derived from the day-to-day life. Next thing, this subject also helps to clear your paper 2 exam. You can ask me why. Why? Because the paper 2 means this public administration is divided into two parts, paper 1 and paper 2. This paper 2, if you observe the syllabus, most of the things has been taken from Indian polity, governance, public policy, panchayati raj institutions, urban local agencies, all those stuffs has been taken in this public administration paper 2. So it will not going to help you only in subject or optional part, but at the same time it is going to help you in paper 2. Another thing, it is again helping you into the paper 4, integrity, ethics and integrity part. There also you are going to derive so many questions from the public administration optionals. Another thing, third part, it is again going to help you in writing the essays. While writing essay, at least one essay you will derive from the public administration optional. Another thing, it is going to help you in no doubt interviews, right? So it's a very unique subject for you to study. One thing I would like to again tell you, that once you got the selection and you will be in Lapsana for training of IAS, that time again you will go through with this public administration concepts and you will be actually in action part, you will be using the public administration. So public administration is a very good subject, good optional. It's a unique one. It covers many aspects, many scenarios, many environment in your life, at the same time for the administrative purposes, because you are going to do the work for the people under the guidance of the leaders. You have to make the cohesion in between the legislature, executive and judicial subjects. So I think we should start our chapter, the public administration.
So I welcome you again in Adbhut Learning IAS Academy. This is me Saurabh Dwivedi. Right? चलिए स्टार्ट करते हैं. There is a chapter 1 that is पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला चैप्टर है, दैट इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन. यहाँ पर हम लोग मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को केवल आज डिस्कस करने वाले हैं. आप एडमिनिस्ट्रेशन का शब्द सुन रहे हैं बार बार. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? हियर आई ट्राइड टू mark some definition about it. So the administration is the entity where two or more individuals cooperate to achieve common goals. यहाँ पर आपको क्या बता रहा है ये, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके कॉपरेट करते हैं टू अचीव ए कॉमन गोल. यहाँ कॉमन गोल अचीव करना है. बट फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टू और मोर इंडिविजुअल्स. मीन्स व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन कब कहेंगे किसी चीज़ को आप? जब दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व होंगे, कॉपरेट, एक साथ में कॉपरेट करेंगे और एक साथ कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब क्या है? अगर आप सपोज कीजिए इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन है और आप कोई काम कर रहे हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा? नो, दैट इज़ नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ कंपल्सरी टू दैट there must be at least two or more individuals. Another thing, there must be a cooperation. अगर मान लीजिए दो लोग इकट्ठे भी हो गए बट आपस में फाइट कर रहे हैं, अपने आपस के विचार नहीं मिल रहे हैं, the thoughts are absurd. So again it is not administration. So two or more individuals, first thing. There must be a cooperation, second thing, and both should work to achieve a common goal. मीन्स दोनों की एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें. ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. राइट? अभी हम इसके और डेप्थ में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता है. अगेन देयर इज ए लाइन्स आर गिवन. एडमिनिस्ट्रेशन इन फैक्ट इज ओनली दैट टाइप ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी. अगेन जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. In fact, is only the type of collective activity. Again, a collective activity which involves rational organization and management of men and material. Means in diagram you can see there is a rational organization. Means rational organization का मतलब यहाँ पर क्या है? एक legitimate यानी एक proper organization होना चाहिए जहाँ लोग हों, इकट्ठे हों, काम करते हों, proper machinery हो, proper work function चल रहा हो. So एक rational organization हो गया. There you will find the men, and another side you will get the materials. By men and material in an organization must be managed. Means ये जो पूरी फंक्शनैलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दोनों को कलेक्टिवली क्या करना चाहिए? मैन को मटेरियल का यूज़ करके प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फिर हमें अचीव करना है. अब ये कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. इट मे बी द प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, डेवलपिंग प्रोडक्ट, or anything. So collective, again there is a word collective activity. Right? Now we will try to understand this administration in the terms of thinkers, because दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें अपने व्यू नहीं देने हैं. हम अपने व्यू तब देंगे जब हम थिंकर्स का साथ लेकर चलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है. बहुत सारे थिंकर्स ने इसको इवॉल्व करने की कोशिश की, इसको फ्रेम करने की कोशिश की, इसको शेप करने की कोशिश की. तो वहाँ बाय द टाइम थिंकर्स हैज गिवन देयर डेफिनेशंस. सो फर्स्ट थिंकर्स आई वुड लाइक टू कोट हियर हर्बर्ट ए साइमन. हर्बर्ट ए साइमन, व्हाट ही सेड, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल. अगेन आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है ये. इट इज़ डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, यानी जो ग्रुप में लोग जो रह के काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल. अगेन अ कॉमन गोल मस्ट बी अचीव्ड. सी द डायग्राम ऑफ द definition. Here are the people gathered, means they are working in a group, all are cooperating to accomplish a common goal. Right? नेक्स्ट थिंकर J.M. फिनर, इसको PFFNER है, फिफिनर या फिनर कहते हैं इनको. ही सेड
Administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired goal. यहाँ पर आपको एक डिजायर्ड गोल अचीव कर रहा है. देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है, मटेरियल है और यहाँ पर पीपल है, एंड दे आर अगेन वर्किंग फॉर द डिजायर टू अचीव डिजायर्ड ends, right? So again collective effort. Next is E.A. Negro. What he said, administration is the organization and use of men and material. Again he is talking about the organization, and there he is talking about the men and material to accomplish a purpose. यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्पस को अचीव करना है. तो साइमन में हमने देखा ही इज टॉकिंग अबाउट अ कॉमन गोल. फिनर ने अगेन देखा एक डिजायर्ड एंड. Negro he is talking about the purpose. Whatever they are talking about, they are again talking about the collective means यहाँ लोगों का एक कलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर इन सबको एक कोऑपरेटिव मैनर में आकर के किसी डिजायर्ड गोल को अचीव करने की ये बात कहता है. राइट. अनदर थिंकर्स आर देयर हु हैज टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. लेट्स सी. अदर थिंकर्स आर देयर. L.D. White. L.D. White has talked about the art of administration. Means he focused the word art of administration. He said that there is an art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective. Means he focuses on few words like first one is art. Means administration क्या एक art होता है. दूसरा है कैसे, how, by giving the directions. Another one by coordinating among themselves, and third an important thing is control of many persons, because there are so many persons that are employed in the organization or in a factory or in an institution. So there must be a direction has been given by the bosses, superiors. Then this direction must be coordinated with the employees, and in response there must be a control of the bosses, their supervisors, on the activities of the many persons who they are employed in the organization or institutions. So this all are the functioning that managing all this functioning is an art. So L.D. White is focused on the art of administration, because direction, coordination and control must be mingled in a way so it will ease the achieving the purpose or objective. Right? Means purpose या objective को achieve करने में ये help करता है. Next is F.M. Marx. F.M. Marx has talks about the administration is determined action taken in pursuit of a conscious purpose. Means it's a determined action है, taken in a pursuit of conscious purpose. एक conscious purpose होता है, इसी लिए determined होते हैं. It is the systematic ordering of affairs and the calculated use of resources. Means it is nothing but the systematic ordering of affairs. There are so many affairs, there must be ordering of these affairs. Then he talks about the calculated use of resources. I mean, in all the affairs there must be a calculated use of resource. Third one, aimed at making those things happen which one wants to happen. Means जो काम करने की इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन बनी है उस काम को करना चाहिए. And for telling everything to the resource. Means जो भी contrary में for telling everything to the contrary. Means यहाँ contrary शब्द लिखा हुआ छुप गया है. So means he talks about the 5 things. First is resource, second is affairs, third is action, fourth is purpose, and fifth is goal. Means there are affairs. To manage those affairs there must be resources. The availability of resource must be in a commonality, means in a continuation form. By making those things there must be action. Action is the techniques are applicable here. Then the purpose is to the purpose कुछ भी हो सकता है. That must be production of anything or enhancement of profitability or anything. So these are the all the affairs are there. So there must be culminate to achieve a goal. So F.M. Marx about the
all these things. Here I, friends, try to define the administration in the terms of government, how it is defined as a part of government. Because you know the government is nothing but the legitimate institution. Why it is legitimate? Legitimate means the people has elected them, given them the power to rule for their welfareism. So government is nothing but the legitimate institute, first. Second is biggest organization in terms of activities. Government in terms of the functioning, they are the biggest in terms. They have various institutions, like अगर आप अपने आप चारों तरफ देखेंगे, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं. लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, राइट, external ministry. So biggest, they are the biggest organization. Meanwhile, they are segregated in states and up to the district and the local levels. So it is uphill task to complete or to manage all the affairs from top to bottom. So again, it's the biggest organization in terms of activities. Third one is that unmatched complexities. Again, when there are so many organizations, institutions are there, so there again a challenge of unmatched complexities. There will be so many complexities, बहुत सारे issues होंगे, एक दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ अफेयर्स होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, कहीं फाइलें नहीं पहुंच रही, कहीं कोई फाइल आई नहीं है, किसी बात को लेकर इशू हो गया, कहीं किसी कंस्टिट्यूएंसी के लोग नहीं चाहते हैं उस प्रोजेक्ट लगाना. सपोज कीजिए कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ के लोग धरने पे बैठ गए हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे आप आज की डेट में देख सकते हैं, कृषि आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई, बिल को पास करा दिया, कृषि एग्रीकल्चर जो उनकी आय को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए. बट क्या हुआ, अगेन सम पार्ट्स ऑफ द किसान जो है वहाँ धरने पे बैठ गए कि नहीं, वी डोंट वांट दैट एक्ट. सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज यू कैन इमेजिन इन योर डे टू डे लाइफ. फोर्थ वन इज दैट क्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन. Government is always seen as a credited organization because it has a faith, people has elected them, so given them the power, so credit is given to the government. So इसका मतलब ये हो, government whatever they will do for the welfare of people. So all सारी ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम जब क्लब करते हैं तो इनका भी एक कॉमन गोल होता है. गवर्नमेंट का भी कॉमन गोल होता है to administer all these things. Why they are doing all these things? To achieve a common goal, and the common goal is nothing but the what? Is to welfare the people, welfare the society, right? So this is the part of administration related with the government, how government is administered, right? So this is the diagram of which I mentioned here. Now friends, we'll discuss about the administration by the thinkers. Administration thinkers categorize administration in 3 school of thoughts. यहाँ पे दोस्तों thoughts है जो छुप गया है. अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के रूप में डिफाइन किया गया है. अब यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि जैसे जब कोई सब्जेक्ट इवोल्यूट हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है, कई सारी थेरीज निकल के आती हैं, और वो थेरीज क्या करती हैं, डिफरेंट थिंकर्स अपने अपने हिसाब से डिराइव करते हैं और उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और उसको एप्लीकेशन यानी उसका एप्लीकेबिलिटी जो है सोसाइटी के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं. तो इसी फहरिस्त में इसको 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में इसको डिवाइड किया गया है. आइए देखते हैं 3 स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं. द 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. दैट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट. अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी सब कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट हुआ था उस समय जो थेरीज डिराइव की गई है उस समय के थिंकर्स के द्वारा, उसको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं. ही टॉक्स अबाउट द मशीनरी, मशीनरी, मटेरियल, राइट. और इसको जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुँचाने के लिए, ये सब फोकस उनका एरिया था. तो दैट टाइम द फर्स्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो थिंकर है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यानी जो ऐसी मैनेजमेंट थ्योरी जो कि साइंटिफिक बेस्ड हो, टूल्स एंड टेक्निक्स पर बेस्ड हो. दैट थ्योरी हैज़ बीन डिराइव्ड बाय द टेलर. F.W. Taylor was the thinker who first derived this classical school of thought that is known as scientific management theory.
अभी हम लोग इसको लेटर ऑन अभी आने वाले पेपर्स में सेकंड पेपर जो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेशनल थ्योरी। सेकंड जो है मैनेजमेंट थ्योरी, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहते हैं, ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया था फेयोल ने, गुलिक ने, उर्विक ने, ऐसे कई सारे थिंकर्स जिन्होंने खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या ऑपरेशनल या कॉपरेटिव यानी इन सब मैनेजमेंट थ्योरी पर ध्यान दिया था। थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी गिवन बाय मैक्स वेबर। अब जो थर्ड है ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स यू कैन ऑब्जर्व, आप क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ही ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आईएएस अधिकारी क्या होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। अब ये जो थिंकिंग, ये थॉट है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी और ये ही स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम देशों ने, कंट्रीज़ ने इसको अपनाया। जो आज हमारे यहाँ भी देखते हैं आप आईएएस आईपीएस के रूप में, जो एक फंक्शनैलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इसी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेशनल थ्योरी, एंड थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आर गिवन in this classical school of thought. Next is humanistic school of thought. So humanistic school of thought is nothing but the human in center, means यहाँ पर पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में क्या था, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, यानी वहाँ पर क्या था, मशीनरी, मैन, टूल्स, टेक्निक्स की बात की गई थी। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन इन सेंटर। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स में यहाँ पर मैन जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय पे ध्यान देने की बात कर रहा है। यानी कि ह्यूमनिस्टिक जो आस्पेक्ट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, इन्वायरमेंटल जो फेजेस होते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन को, एम्प्लॉय को, उसके ऊपर ध्यान देने की बात करता है। सो यहाँ पर जो थिंकर्स हैं स्कूल ऑफ थॉट्स में, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी गई थी गिवन बाय एल्टन मायो। एल्टन मेयो ने एक ह्यूमनिस्टिक रिलेशन थ्योरी दी। दूसरे थे बिहेवियरल थ्योरिस्ट। द बिहेवियरल थ्योरिस्ट आर बर्नार्ड एंड साइमन। these are the thinkers who talks about the behavioral theories, बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड वन इज दी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। दिस पार्टिसिपेशन मीन्स और एक ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से पार्टिसिपेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, इन सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है। दोज थिंकर्स आर लिंकर्ट, आर्गरिस and McGregor. Likert, Argyris and McGregor, these thinkers has talked about the participative management theory. Again, in between the classical school of thought and humanist school of thought, you can observe a Follett, Mary Parker Follett. She was a women thinker, first and prominent thinker who talks about a commonality between classical school of thought and humanistic school of thought. मीन्स इन्होंने एक बीच का रास्ता दिया, एक ब्रिज के रूप में ये भी काम करती है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। क्योंकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में टूल्स टेक्निक्स की बात की गई है, कॉग इन मशीन की बात की गई है, साइंटिफिक टूल्स मैनेजमेंट की बात की गई है। बट ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में वहाँ पर ह्यूमन को सेंटर में रखा गया, ह्यूमन का आस्पेक्ट्स को देखा जाता है, उसकी इमोशनल टॉकिंग की बात की जाती है। तो फॉलेट ने क्या किया, यहाँ पर दोनों के थॉट्स को लेकर एक अपना डिराइव किया है मेथड। उसको कहा है कनेक्ट, मीन्स शी इज कनेक्टिंग दी बोथ क्लासिकल एंड ह्यूमनिस्ट थ्योरी। सो these two school of thoughts has been completed. Now we talk about the third, modern school of thought. The modern school of thought has evolved these days. After the study of classical school of thought and humanist school of thought, there is a new evolution has taken place because challenges has grown up. World War One, again after World War Two, so many things has been changed. Developed and underdeveloped, the categorization were there. So countries are focusing on their developmental aspect. When countries are looking towards their developmental aspect, they go for the further relations. They make relationship with other countries. Various liberalization, privatization, globalization taken place. Open the market area for global players. So various messy things has been happened. In this scenario, the administrator
must be uprooted with the with the culminate with the changes. तो यहाँ पर क्या है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट दोनों के व्यूज़ को, वैल्यूज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आगे लेकर के इस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में, नए एरेना में, नए चेंजेस में किस प्रकार से लेकर चलता है, वही हम यहाँ पर मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में बात करते हैं. यहाँ पर दो थ्योरी दी गई हैं, सिस्टम अप्रोच थ्योरी एंड दूसरी कंटिजेंसी अप्रोच. सिस्टम अप्रोच यानी किस प्रकार का सिस्टम नए नए तरीके में लाया जा रहा है, वो सारी बातें हैं. दूसरी कंटिजेंसी अप्रोच की यहाँ पर बात की. ये सारे के सारे जो यहाँ पर थॉट्स हैं, इन सारे थॉट्स को हम लोग अभी आने वाले चैप्टर्स में इसको स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि दे आर द बेसिस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. अगेन नेक्स्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अगर पूछे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट दी फिनोमिना ऑफ थ्री थिंग्स: men, machine and method. Without men there is no organization, without machine there is no organization, without method there will be no organization. Means men, machine and method are the essential base for the organization. When we talk about the men क्या होते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं. यानी जो एक ह्यूमन बीइंग एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके अपने ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसका स्टेचर होता है, उसको वर्किंग कैपेबिलिटी होती है, राइट. उसके इमोशंस होते हैं, उसको सैलरी रिक्वायरमेंट होती है. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन एलिमेंट के रूप में मौजूद होते हैं. पीयर प्रेशर होता है, एक दूसरे नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि यहाँ पर नॉन फॉर्मल टॉक्स होती हैं, फॉर्मल टॉक्स होती हैं. तो इन सब का एक ब्रिज होना चाहिए. वो सारी की सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैन के रूप में वी लुक आफ्टर. Next is machine. Machine means what? Machine are design or structure of organization. Machine यहाँ पर केवल मशीनरी की ही बात नहीं हो रही कि एक हैवी मशीनरी लगा दी गई. इसके साथ में ये भी होता है कि कैसे डिज़ाइनिंग में किस तरीके से स्ट्रक्चर रूप में चीज़ें रखी गई हैं, सीक्वेंस में रखी गई हैं, राइट. स्ट्रक्चर क्या है उसका, डिज़ाइनिंग क्या है उसकी 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 जो एक असेंबली हॉल होता है उसका सिस्टम कैसे बनाया गया है. कोई प्रोडक्ट सपोज कीजिए वहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी एक असेंबली लाइन होती है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना हुआ होता है, वो सब मशीन यहाँ पर देखी जाती है. थर्ड वन इज मेथड. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गॉट द मैन, यू गॉट द मशीन, बट हाउ यू विल अप्लाई, मीन हाउ यू विल यूज देम. This using of them is with the use of methods, means process within organization, with which process you are going to utilize these men and machine in an organization to achieve a common goal, common purpose, common end, whatever you can call it. So there are processes to manage all those affairs in the organization. So this is the organization. Means if someone asks you what is organization, then you can say organization is nothing but the common factors are men, machine and method. Men are human element, machine are design and structure of organization, and methods are nothing but the process within organization. Right. Now we discuss another thinker, Ian Gladden. He talks about the administration. What he said? Administration is a long and pompous word, but it has a humble meaning. What he said? Long and pompous word, but it has a humble meaning. जब ये हम्बल मीनिंग की बात करते हैं, इसका कुछ ना कुछ एक अपना मीनिंग की बात इन्होंने कही है. सो ये कैसे हम्बल मीनिंग देता है, इसको एड प्लस मिनिस्ट्रेयर, चूँकि ये जो शब्द एडमिनिस्ट्रेशन है वो लैटिन वर्ड है, एक एड प्लस मिनिस्ट्रेयर. यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में एड प्लस मिनिस्ट्रेयर. इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, to manage affairs. To care for, to look after people, to manage affairs. ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एड प्लस मिनिस्ट्रेयर का मतलब. तो जब टू लुक आफ्टर या टू केयर फॉर की जब बात करते हैं, तो एक टू मैनेज अफेयर्स और टू लुक आफ्टर पीपल, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो प्रोसेस है
इट इज़ नॉट लिमिटेड, इट इज़ नॉट लिमिटेड मीन्स टू लिमिटेड टू वन स्फेयर, किसी एक चीज़ के ऊपर ही केवल लिमिटेड नहीं रहता है, बट इट परमिएट्स ऑल, मीन्स ये इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बी इट प्राइवेट और पब्लिक और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, स्मॉल और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक्चुअली यूनिवर्सल है, ऑल इन ऑल है, आप सब कहीं पर क्या होता है, एवरीवेयर यू विल सी द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, जिसको बहुत सारे थिंकर्स ने भी देखा हमने कैसे कैसे डिफाइन किया है, कैसे कैसे अभी अपने लूथर गुलिक हों, चाहे वो नीग्रो हों, राइट, चाहे वो इलियन ग्लैडन हो, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देयर इज मस्ट बी ए स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनैलिटी हैज़ बीन इन्वॉल्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की हमने थेरीज देखी हैं वेरियस थिंकर्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन को हमने समझने की कोशिश की है, कैसे काम किया जाता है, कैसे मैन मशीन मेथड का मटेरियल जो होता है उसका मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएगा। पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमारी हो गई हैं, अब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।